Hello students, today I am going to explain you about drug abuse and alcohol abuse. Drug abuse and alcohol abuse come under the category of behavioral risk factors, and these behavioral risk factors include many things besides drug and alcohol use. For example, is smoking tobacco, unsafe sexual behavior. So in a way we can say that behavioral risk factors can be classified into three broad categories. First is drug and alcohol use, which may be used as substance abuse. Second is smoking tobacco, and third is unsafe sex behavior. So in this presentation I am going to deal with drug abuse and alcohol abuse. Drug and substance abuse. The use of illegal drugs or the use of prescriptions or over-the-counter drugs for purposes other than those for which they are meant to be used are in excessive amounts. Drug abuse and addictions, now both grouped as substance or drug use disorder, is a condition characterized by a self-destructive pattern of using a substance that leads to significant problem and distress, which may include tolerance to or withdrawal from the substance. तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रग यूज़ एंड ड्रग अब्यूज़. ड्रग यूज़ वो कंडीशन होती है जिसमें हम किसी अपनी फिज़िकल या बिहेवियरल प्रॉब्लम के लिए कुछ मेडिकेशन लेते हैं प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर इन स्पेसिफिक अमाउंट. लेकिन ये ड्रग यूज़ से ड्रग अब्यूज़ तब बन जाता है जब हम इलीगली कुछ अनप्रिस्क्राइब ड्रग को ओवरली लेने लगते हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर. और ये वो कंडीशन होती है जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की फीलिंग्स दिखाई पड़ती हैं और जिनकी वजह से जो इंडिविजुअल की नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग होती है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है. सो द यूज़ ऑफ ड्रग which significantly and adversely affect the daily functioning of the individual can be categorized in the category of drug abuse. DREs, that is drug recognition experts or evaluators, classify drug in one of 7 categories. First is central nervous system, that is CNS depressant, CNS stimulants, hallucinogens, dissociative anesthetics, नारकोटिक एनाल्जेसिक, इनहेलेंस एंड कैनबीस. तो जिन ड्रग्स की हम बात करने जा रहे हैं, जो 7 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं, यही ड्रग्स होती हैं जिनको हम लीगली यूज़ भी करते हैं और अब्यूज़ भी इन्हीं से हो जाते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द वे यू आर टेकिंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ ड्रग्स. अगर आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को या किसी फिजिशियन को प्रॉपरली कंसल्ट करके अपनी किसी प्रॉब्लम को बता के कोई मेडिकेशन ले रहे हैं और उसी के बताए हुए क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो ड्रग यूज़ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि डॉक्टर ये डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन अवर मेडिकल सिम्टम्स कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों हमें कुछ पेन्स हो रहे हैं या क्यों हमारी बॉडी है इन ए स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट. तो उसी को कंसीडर करते हुए जो फिजिशियन होता है वो हमें कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है इन्हीं 7 कैटेगरीज से रिलेटेड. लेकिन जब हम अपने मनमाने तरीके से इन्हीं ड्रग्स को इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो हमारा ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में आ जाता है. तो ये ड्रग्स की 7 टाइप्स हैं और इनको 1 बाय 1 हम आगे इलैबोरेट करेंगे. Drugs from each of these categories can affect a person's central nervous system and impair a person's normal faculties, including a person's ability to safely operate a motor vehicle. So the first category of drugs is CNS depressants. CNS depressants slow down the operations of the brain and the body. Examples of CNS depressants include alcohol, barbiturates, anti-anxiety tranquilizers, for example, Valium, Librium, Xanax, Prozac, and Thorazine, and GHB. तो डिप्रेसेंट जैसा कि इसके टर्म से ही क्लियर है कि जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं. तो जिससे जो लोग बहुत एक्टिवेटेड होते हैं तो उनको उनके एक्टिवेशन लेवल को कम करने के लिए डॉक्टर्स इन डिप्रेसेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. तो इनके इतनी कैटेगरीज हैं और इनका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करना.
Second category is CNS stimulants. CNS stimulants accelerate the heart rate and evaluate the blood pressure and speed up or overstimulate the body. Examples of CNS stimulants include cocaine, crack cocaine and amphetamines. ये जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. जैसे जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्टेट में होता है या कुछ नहीं कर सकता है या बहुत एंग्शियस होता है, स्ट्रेस की वजह से वो कुछ काम ही करना नहीं चाहता है, तो उसको थोड़े स्टिमुलेंट दिए जाते हैं कि जिससे उसका ब्रेन कुछ एक्टिवेट हो. तो इसके मेन फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को एक्सीलरेट करना है और उसके एग्जाम्पल्स आपका मेनली कोकीन एंड एम्फेटामाइन्स है. थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग is hallucinogens. Hallucinogens cause the user to perceive things differently than they actually are. Examples include LSD, peyote and MDMA. तो ये जो hallucinogens जो होते हैं इनका क्या मेन पर्पज़ होता है, ये इंसान के जो परसेप्शन है उसका डिस्टॉर्शन कर देते हैं. क्योंकि hallucinations क्या होते हैं, we perceive the stimulus when the stimulus is not there. तो this is the distorted perception. तो जितने hallucinogens के टाइप की ड्रग्स हैं उनका भी काम यही होता है कि वो परसेप्शंस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और उनसे a person is not able to perceive what actually is happening outside his body. तो इनमें डिफरेंट टाइप की ड्रग्स आती हैं जो ब्रेन में हैलुसिनेशंस की स्थितियों को पैदा करती हैं. फोर्थ इज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स. Dissociative anesthetics include drugs that inhibit pain by cutting off or dissociating the brain's perception of the pain. PCP, its analogs, and dextromethorphan are examples of dissociative anesthetics. एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये हमारे पेन की जो सेंसेशंस हैं उनको कट ऑफ कर देती हैं, स्पेशली जो आपके डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स होते हैं. इनका काम होता है पेन को इनहिबिट करना. फिफ्थ इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स रिलीव पेन, इंक्लूड यूफोरिया एंड क्रिएट मूड चेंजेस इन द यूजर्स. एग्जाम्पल्स आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स इंक्लूड ओपियम, कोडीन, हीरोइन, डर्मेनॉल, मॉर्फिन एट्सेट्रा. तो इनका काम क्या होता है, ये पेन को रिलीव करते हैं लेकिन यूफोरिक सेंसेशन के साथ करते हैं. मतलब इसमें इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इलेटेड फील करता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है. तो ये दोनों ही आपके एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके जो टाइप्स हैं दे आर डिफरेंट. Sixth type is inhalants. Inhalants include a wide variety of breathable substances that produce mind-altering results and effects. Examples of inhalants include toluene, plastic cement, paint, gasoline, paint thinners, hairspray and various anesthetic gases. तो ये जो inhalants हैं, जिन चीज़ों को हम इनहेल करते हैं और जो अपना इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे डालते हैं उनको हम इनहेलेंट टाइप के सब्सटेंसेस कहते हैं. और ये हमारे माइंड को ऑल्टर कर देते हैं और उनसे द पर्सन इज़ नॉट एबल टू परसीव द रियलिटीज़ अराउंड हिम. एंड द लास्ट ग्रुप इज़ कैनबीज. कैनबीज इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर marijuana. द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन कैनबीज इज़ delta-9 or THC. This category includes cannabinoids and synthetics like dronabinol. तो ये जो कैनाबीज है इसका साइंटिफिक नेम marijuana है and this is very popularly used drugs even in India. Now what are the symptoms of a drug problem? एक कैसे हम जानेंगे कि कोई इंडिविजुअल है, इसको ड्रग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ही इज़ अ विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज़. So it may include recurrent drug use that results in legal problems. Number 2 is occurs in potentially dangerous situations. Number 3, interfere with important obligations, results in social or relationship problem. Tolerance, withdrawal symptoms, using a lot of the drugs or for a long period of time. Persistent desire to use the drug, unsuccessful efforts to stop using the drug. Neglecting other aspects of life because of their drug use and spending
inordinate amount of time or energy getting, using or recovering from the effects of the drug. तो कोई इंडिविजुअल ड्रग का यूज़ कर रहा है या ड्रग का अब्यूज़ कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसके डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स पर. अगर किसी ड्रग का इंटेक हमारी डेली लाइफ में इंटरफियर करे, इंडिविजुअल चाह के भी उसे छोड़ ना पाए, अगर छोड़े तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो और वो बार बार लंबे टाइम तक उसकी बॉडी में परसिस्ट करे, और एक पर्सन मतलब छोड़ना चाह के भी जब उसे छोड़ नहीं पाता है और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइफ पे पड़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ ड्रग अब्यूज़. While the specific effects of drugs on the brain can somewhat vary depending on the drug that is being used, virtually every substance that is abused has an effect on the executive functioning area of the brain. Drugs particularly affect the brain's ability to inhibit action that the person would otherwise delay or prevent. Now, here it is very important to know what is drug abuse and what is drug addiction. So, I want to clarify the concept of addiction here. Addiction is a disease that affects our brain and behavior. When someone is addicted to drug, he cannot resist the urge to use them, no matter how much harm the drug may cause. The earlier one gets treatment for drug addiction, the more likely he is likely to avoid some of the more desired consequences of the disease. Drug addiction is not about just heroin, cocaine or other illegal drug. One can get addicted to alcohol, nicotine, sleep and anti-anxiety medication and other legal substances as well. तो इन अ नटशल हम क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिक्शन. एडिक्शन वो चीज़ होती है और ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, ना सिर्फ अल्कोहल, निकोटीन या एंग्जाइटी, किसी चीज़ के लिए भी हमारा एडिक्शन हो सकता है. गेमिंग के लिए हमारा एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल को सर्च करने के लिए हमारा एडिक्शन हो सकता है, गार्डनिंग के लिए हमारी हॉबी कोई हमारा एडिक्शन बन सकती है. तो एडिक्शन कैन बी एनीथिंग, वो एनीथिंग जिसको हम करने से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, वो चीज़ हमारी एडिक्शन की कैटेगरी में आ सकती है. और यहाँ पे जो हम ड्रग एडिक्शन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो किसी ड्रग का इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाना, इतनी ज़्यादा लत हो जाना कि चाह के भी उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखने के बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू रेजिस्ट आवरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग. तो इसे हम एडिक्शन कहते हैं. इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग दैट ड्रग. दिस इज नोन एज द एडिक्शन. Addiction is when a person cannot stop, not when it puts its health in danger, not when it causes financial, emotional and other problems for him or his loved one. That urge to get and use drugs can fill up every minute of the day even if he wants to quit. तो एडिक्शन इज़ नॉट अ सिंपल थिंग. एडिक्शन के लिए आदमी कुछ भी करता है, चोरी करता है, लूट पाट करता है, इवन अपने घर में चोरी करता है, पेरेंट की पॉकेट से रुपए निकाल लेता है या वाइफ के पर्स से रुपए निकाल लेता है, कुछ भी करता है, घर के जो लग्जरीज होते हैं उनको जाके बेच आता है, लेकिन अपने एडिक्शन को पूरा करने की कोशिश करता है क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ. ये अर्ज इतनी स्ट्रांग होती है कि इसके लिए वो फाइनेंशियल, इमोशनल कुछ भी नहीं देखता है और वो उस चीज़ के लिए अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता है. एडिक्शन ऑल्सो इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल डिपेंडेंस और टॉलरेंस. In case of physical dependence, withdrawal symptoms happen when you suddenly stop a substance. Tolerance happen when a dose of the substance become less effective over time. इनके बारे में भी हम आगे बताएंगे कि what are consequences of addiction. Drug abuse is an intense desire to obtain increasing amount of a particular substance. इसको अब हम nutshell में, अभी तक हमने जो कुछ बताया, I am trying to summarize that. Drug dependence is the body's physical need or addiction to a specific agent. Over the long term, this dependence results in physical harm which causes tolerance, that it creates a vicious cycle. अब जो आपका ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ क्या है? ये इंटेंस डिज़ायर होती है कि हम एक सब्सटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो ये हमारा इस्तेमाल करने की आदत होती है ना, ये जो ड्रग अब्यूज़ है, वो उस ड्रग के लिए स्पेसिफिक हमारा एडिक्शन क्रिएट हो जाता है.
और ये एडिक्शन जो होता है ये हमारी बॉडी में दो टाइप के डिपेंडेंस लाता है, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और दूसरा फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल जो हमारी डिपेंडेंस होती है उसकी वजह से हम इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, वी कीप ऑन कैलकुलेटिंग कि हम कितनी डोज लें कि हमारा सेटिस्फैक्शन भी हो जाए, मुझे एडिक्शन भी ना हो जाए। तो वी कीप ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दोज कैलकुलेशन इन अवर बैक ऑफ द माइंड कि किस टाइप से हमको लेनी, बट वी आर ऑब्सेस्ड ऑफ थिंकिंग एंड टेकिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग। दिस इज नोन एज द साइकोलॉजिकल एडिक्शन। फिजिकल जो आपका एडिक्शन होता है इसके दो टाइप होते हैं जो कि अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये जो अभी हम बता रहे थे, ड्रग का विशियस साइकिल चलता रहता है। ड्रग लीड्स टू ड्रग अब्यूज लीड्स टू ड्रग डिपेंडेंस, डिपेंडेंस की वजह से वापस हम ड्रग लेते हैं, ड्रग की वजह से ड्रग अब्यूज फिर हो जाता है, फिर ड्रग डिपेंड। तो ये जो विशियस साइकिल होता है दिस कीप्स ऑन एंड ऑन। अब हम बात कर रहे थे कि जो ड्रग का एडिक्शन होता है इट में लीड टू टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंस। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, उसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। इट इज़ ए स्टेट इन विच इंडिविजुअल फील अ कंप्यूटेशन टू यूज अ सब्सटेंस फॉर द pleasant effect it produces without necessarily being physically dependent on it. They rely heavily on it, often to help them adjust to life and feel good, and they center many activities on obtaining and using it. Psychological dependence is the first stage of addiction. Psychological dependence does not necessarily guarantee the physical dependence on a particular kind of drug. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम कैसे लें उसके बारे में हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट आवर फुल फोकस रिमेन्स ऑन द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग कि हाउ ऑफन वी कैन यूज़ दैट ड्रग। इसके बाद इस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के बाद व्हेन वी आर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्टिकुलर ड्रग, आवर एडिक्शन मूव्स ऑन एंड ऑन। और जैसे जैसे ये एडिक्शन हमारा बढ़ता जाता है, दिस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में कन्वर्ट इनटू अ फिजिकल डिपेंडेंस। तो अब हमारे पास साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजिकल डिपेंडेंस भी ड्रग के लिए स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द मोर सीवियर स्टेज ऑफ एडिक्शन। फिजिकल dependence is a state in which the body has adjusted to a substance and incorporated it into the normal functioning of the body's tissue. This state has two characteristics. फिजिकल डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में इतना घुल मिल जाता है कि आवर बॉडी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग। मतलब जो हमारी बॉडी अपने नेचुरल एंडोफिन्स सेक्रेट करती है, नाउ आवर बॉडी हैज़ स्टॉप टू सेक्रेट एनी एंडोफिन्स एंड द बॉडी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द आउटसोर्सिंग। ड्रग्स की जब आउटसोर्सिंग स्टार्ट हो जाती है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि नाउ द बॉडी नीड्स नॉट टू जनरेट एनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स, एनी टाइप्स ऑफ एंडोफिन्स फ्रॉम इटसेल्फ, बिकॉज ड्रग इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो द मोमेंट द बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग दीज सिग्नल्स, उसी मोमेंट से आपकी फिजिकल डिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग। एंड दिस फिजिकल डिपेंडेंस हैज़ टू एस्पेक्ट। फर्स्ट इज टॉलरेंस, is the process by which the body increasingly adapts to a substance and requires larger and larger doses of it to achieve the same effect. At some point this increases reach a plateau. टॉलरेंस क्या स्टेट होती है? जैसे अगर मान लीजिए हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने या इवन 1 साल अगर हम किसी मेडिसिन की 5 mg की टैबलेट खा रहे हैं तो एक पॉइंट वो आता है ना कि जब वो दवा हमें सूट करना बंद कर देती है। अगर वो एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है, तो उससे फिर अब हमारा दर्द दूर नहीं होता है। तो ये जो दर्द दूर ना होने वाली कंडीशन है, इसका क्या मतलब होता है? नाउ आवर बॉडी हैज़ एडजस्टेड टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। तो वो जो इफ़ेक्ट होता है उसका वो नलिफाई हो जाता है। उसके बाद जब उस ड्रग की डोज अगर हम बढ़ाएं या उस ड्रग के कुछ और केमिकल कॉम्बिनेशंस हम देंगे, तब तो वो जो मेडिसिन होती है वो बॉडी पे इफेक्ट करेगी। अदरवाइज द बॉडी created a tolerance for that particular dose of the drug.
इसे हम टॉलरेंस कहते हैं कि जब लगातार यूज़ करने की वजह से एक सब्सटेंस को लगातार यूज़ करने की वजह से हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करना छोड़ देती है, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ना बंद हो जाता है, तो उसे हम टॉलरेंस की स्टेट कहते हैं। और इसका एक टाइम प्लेटो आ जाता है, मतलब बिल्कुल प्लेन, मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बॉडी उसे ले रही है, उसका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता, मतलब वो दवा फ़ायदा करना बंद कर देती है, दवा का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ना ख़त्म हो जाता है। सेकेंड इज़ विड्रॉल. It refers to unpleasant physical and psychological symptoms people experience when they discontinue using a substance on which the body has become physically dependent. The symptoms experienced depend on the particular substance used and can include anxiety, irritability, intense craving for the substance, hallucinations, nausea, headache and tremors. विड्रॉल वो कंडीशन होती है कि जब हमने किसी ड्रग के लिए फिज़िकली और साइकोलॉजिकली उसके लिए हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब उस ड्रग को हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं, क्योंकि उस ड्रग के लिए हम इतना, बॉडी हमारी इतना डिपेंडेंट हो जाती है कि जब वो ड्रग को हम विड्रॉ कर लेते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। और ये ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फैमिली की ड्रग हम ले रहे हैं, मतलब हम स्टिमुलेंट ले रहे हैं, डिप्रेसेंट ले रहे हैं, एनाल्जेसिक ले रहे हैं, तो नार्कोटिक वाले एनाल्जेसिक ले रहे हैं, या दूसरी कैटेगरी के ले रहे हैं, या हेलुसिनोजेंस ले रहे हैं, तो किस कैटेगरी की हम ड्रग ले रहे थे और कितने अमाउंट में ले रहे थे, इसके ऊपर हमारे विड्रॉल सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो अलग अलग ड्रग्स होते हैं उनके अपने अलग अलग टॉलरेंस लेवल होते हैं, तो ये डिपेंड करता है, विड्रॉल सिम्टम्स हमारे कितने सीवियर होते हैं डिपेंड्स अपॉन द क्लास और फैमिली ऑफ द ड्रग द पेशेंट इज़ और द पर्सन इज़ टेकिंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So now this is important to clarify between addiction, abuse and tolerance. Drug abuse is when one uses illegal substance in way one shouldn't. अब्यूज़ क्या होता है कि ड्रग को हम लीगल वे में नहीं देते हैं, मतलब डॉक्टर्स के, फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जब हम ड्रग नहीं लेते हैं. One might take more than a regular dose of pill or use someone else's prescription. This is known as the drug abuse. One may abuse drug to feel good, ease stress or avoid reality, but usually one is able to change one's unhealthy habit or stop using. इसे हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़. एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन इज़ व्हेन वन इज़ नॉट एबल टू रेजिस्ट फॉर टेकिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग, इसको हम एडिक्शन कहते हैं. तो अब्यूज़ और एडिक्शन में क्या अंतर है? अब्यूज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अब्यूज़ एक बार एडिक्शन में हमारी आदत बन जाता है तो उस एडिक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते. टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस जब वो पर्टिकुलर ड्रग हमारे एडिक्शन की वजह से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट देना छोड़ देती है, उसे हम टॉलरेंस कहते हैं. तो टॉलरेंस जो होती है, दिस इज़ हार्मलेस, बट एडिक्शन इज़ डेंजरस, क्योंकि एडिक्शन से हम अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकते. सो पीपल लर्न टू डिपेंड ऑन सब्सटेंसेज थ्रू रिपीटेड यूज़. इंडिविजुअल्स हु बिकम एडिक्टेड फर्स्ट बिकम साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट, later they become physically dependent as their bodies develop a tolerance for it. मतलब फिज़िकल डिपेंडेंस उसी कंडीशन में डेवलप होती है जब इंडिविजुअल जो ड्रग को ले रहा है उसके लिए उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, मतलब वो एक्सटेंट तक पहुंच जाता है जब वो ड्रग अपना इफ़ेक्ट डालना उसकी बॉडी पे ख़त्म कर देती है. The potential for producing psychological dependence differs from one substance to another. It seems to be high for heroin and cocaine and low for LSD. तो ये जो डिफरेंट फैमिलीज़ की ड्रग्स होती हैं, इनके नेचर और इनके इफ़ेक्ट की वजह से कुछ के प्रति टॉलरेंस जल्दी डेवलप हो जाती है और कुछ ड्रग्स के लिए टॉलरेंस देर में डेवलप होती है. Substance abuse is diagnosed on the basis of two criteria. Number one, a person shows a clear and persistent pattern of pathological use, such as heavy daily use and an inability to stop or decrease using a substance. Number two, the abuse has produced at least one of the following problems. Number one,
failing to fulfill important obligations such as in repeatedly neglecting a child or being absent from work. Number B, putting oneself or others at risk for physical injury, for instance by driving while intoxicated. Number C, having illegal difficulties such as being arrested for disorderly conduct. D, having serious social or interpersonal problems, for instance repeated arguments with family or co-workers. तो इन चार characteristics में at least a person must be having one characteristic. Now I want to tell you some effects of drug abuse. First is loss of appetite, rapid breathing and heartbeat, high blood pressure, dilated pupil, fever, sweating, headache, blurred vision and dizziness, flushing, tremors, loss of coordination. These are some consequences of drug abuse. Now, what is the prevalence of drug abuse in India? According to the survey of Ministry of Social Justice and Drug Use in India, continues to grow unabated. Ganja is the most widely used drug in India, and it has been the first ever abused drug for most of the drug abuser, also known as marijuana, followed by charas, known as hashish form of cannabis, which is handmade in Indian subcontinent, and Jamaica. तो इंडिया में गांजा और चरस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड ड्रग्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन अब्यूज़िव मैनर. अब ड्रग अब्यूज़ के बाद नेक्स्ट आता है आपका अल्कोहल यूज़ एंड अब्यूज़. अल्कोहल अफेक्ट्स पीपल इन डिफरेंट वेज. Some people can enjoy a glass of wine with food and drink, moderate amounts of alcohol in social settings without any problems. Having one or fewer drinks per day for women and two or fewer drinks per day for men is considered moderate drinking according to the Center for Disease Control and Prevention. तो अल्कोहल यूज़ एंड अब्यूज़ क्या होता है? जस्ट लाइक द ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़. अगर ड्रग आप ले रहे हैं एंड दैट इज़ प्रिस्क्राइब एंड यू आर टेकिंग दैट ड्रग इन लीगल मैनर, इट इज़ कॉल्ड ड्रग यूज़. But you are taking any particular drug in unprescribed way and in an illegal manner, that is known as the drug abuse. उसी टाइप से अल्कोहल यूज़ एंड अब्यूज़ होता है. अल्कोहल अगर हम सोशल इन्वायरमेंट में किसी पार्टीज़ में एक या दो ड्रिंक्स कोई ले लेता है और उससे उसका कोई डेली फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो ड्रग अल्कोहल यूज़ की कैटेगरी में आता है. लेकिन अगर उसका हम मॉडरेट लेवल, जो कि इसने बताया CDCP के अकॉर्डिंग, जो 2 ड्रिंक्स होते हैं फॉलोड विद फूड एंड स्नैक्स एट्सेट्रा, दैट इज़ completely all right and that comes under the category of alcohol use. So alcohol use and abuse में एक स्लाइड सी लाइन होती है कि if that the use of alcohol is going beyond that line, that is the use of consumption of alcohol is disturbing your day-to-day life, that comes under the category of alcohol abuse. The symptoms of alcohol abuse include drinking to relax, drinking under the influence of alcohol problem with family and friends because of drinking, neglecting responsibilities, having legal problems because of alcohol. तो कोई भी चीज़ जो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग में बैरियर का काम करती है वो नॉर्मल नहीं रह जाती, वो अब्यूज़ की कैटेगरी में आ जाती है. जैसे अगर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज सोशल एंड फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ही इज़ निगलेक्टिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ही और शी इज़ हैविंग लीगल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज़. People who abuse alcohol may deny a problem, but there are ways to recognize alcohol abuse in others. People who abuse alcohol may drink often and experience family, work or school problems because of drinking. यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो अल्कोहल अब्यूज़ की कैटेगरी में इंडिविजुअल आ रहे हैं, they are not going to admit that they are abusing the alcohol, but we can identify on the basis of their behavior. There are some behavioral indications जो कि अभी symptoms में बताया. तो on the basis of those behavioral indication you can easily identify whether a person is doing the use of alcohol or abusing the consumption of alcohol. People who experience the following
are also more likely to deal with their problems with alcohol. मतलब वो कौन सी conditions होते हैं जिसमें a person is more likely to go under the category of alcohol abuse. तो वो circumstances हम कह लें या कौन से ऐसे factors होते हैं which may increase the likelihood of alcohol abuse among the person. These might be depression, loneliness, emotional stress and boredom. When a person feels very low, matlab he is feeling very depressed and he is finding nobody around him who can support him or her in any social or personal problems, then a person feels very low. और इस जब पर्सन लो फील करता है ना तो उसे कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, एक्सटर्नल सपोर्ट. उस समय अगर एक्सटर्नल सपोर्ट उसके सिग्निफिकेंट अदर्स हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर हिज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. लेकिन अगर वो सपोर्ट उसके सिग्निफिकेंट अदर्स ना हो के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग और अल्कोहल, तो दैट माइट कॉज अ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ. जब पर्सन डिप्रेस्ड होता है, लोनली फील करता है, इमोशनली स्ट्रेस्ड होता है, कुछ ऐसी इमोशनल सिचुएशन इन विच द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशनल सिचुएशन, एट दैट टाइम ऑल्सो ही टेक सपोर्ट ऑफ सम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस. बोर्डम, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम अपनी बोर्डम को हटाने के लिए पीने बैठ जाते हैं कि इस समय बहुत बोर हो रहे हैं, चलो क्या करते हैं, ड्रिंक ही कर लेते हैं. तो दिस इज़ डेंजरस बिकॉज अल्कोहल अब्यूज़ कैन लीड टू अल्कोहलिज्म. तो नाउ at this point of presentation, this is very important to tell you what is difference between alcohol abuse and alcoholism. Alcoholism is a category more than alcohol abuse. तो अल्कोहलिज्म कब डेवलप होता है? व्हेन अ पर्सन गेट एडिक्टेड बाय अल्कोहल, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्कोहलिज्म. एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन व्हेन पर्सन कैन नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ टू टेक दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिक्शन. तो जब ये एडिक्शन होता है तो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता, रेजिस्ट नहीं कर पाता है. शराब उसके सामने हो या ना हो, उसे शराब चाहिए ही चाहिए. So this is because alcohol tolerance level can gradually increase. Some people start to drink more and more with each passing day. तो एडिक्शन और जो अल्कोहलिज्म होता है, अल्कोहलिज्म इज़ बिकॉज ऑफ एडिक्शन, और ये एडिक्शन जो होता है, इस एडिक्शन की वजह से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. टॉलरेंस का क्या मतलब है? पहले हमें 1 या 2 पैग में ही नशा हो जाता था एंड वी यूज टू फील सेटिस्फाइड विद दैट अमाउंट ऑफ अल्कोहल. लेकिन एडिक्शन की वजह से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पीता जाता है ना, तो वो बॉडी में उस चीज़ के लिए टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. तो जो काम पहले 2 पैग से होता था वो अब 4 ग्लास ऑफ ड्रिंक से होने लगा है. तो जो अब क्या हो गया, 2 इज़ इक्वल टू 4 हो गया है. ये मतलब जो काम पहले 2 ड्रिंक से होता था वो अब 4 ड्रिंक से होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी ने टॉलरेंस डेवलप कर ली है. नाउ 2 पैक्स आर नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई the individual. Now he is trying to increase his amount of alcohol consumption. तो ये जब टॉलरेंस बॉडी में डेवलप हो जाती है तो उस टॉलरेंस की वजह से अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता जाता है. तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्कोहलिज्म. नाउ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट प्रॉपरली. अभी तक जो आपको मैंने बताया है उसी को और एलैबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ. द टर्म्स अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली. बोथ connote a problem with drinking and negative impact on day-to-day life from alcohol consumption. But there are subtle yet important distinctions between these two terms. So what I want to say कि alcohol abuse and alcoholism both impair the daily functioning of an individual. The difference, but there is still a difference, and what is that difference? The difference lies on the magnitude of the problem. Alcoholism में a person is likely to face more and more problem as comparison to alcohol abuse. This picture is depicting the brain areas affected by alcohol. इसमें amygdala, hypothalamus and
थैलेमस ये और कॉर्पस कॉलिज्म, ये डिफरेंट टाइप के जो एरियाज़ हैं ये ब्रेन को अफेक्ट करते हैं. मतलब जो आपका अल्कोहल का कंजम्पशन है, इट अफेक्ट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ब्रेन. So, according to the American Psychological Association (APA), alcohol abuse is a pattern of drinking that results in significant and recurrent adverse consequences. People who use alcohol may have repeated problems with the law, difficulty maintaining relationships, or trouble holding down a job because of their habitual drinking. Yet they continue to drink despite these consequences. This comes under the category of alcohol abuse. तो अल्कोहल अब्यूज़ में भी सिग्निफिकेंट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड दीज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्ट नेगेटिवली टू द पर्सनल, सोशल एंड professional life of the individual. And in spite of facing all these problems in every domain of the life of the individual, a person is still continue drinking. Alcoholism is a chronic disease characterized by a physical and psychological dependence. This is the major difference between alcohol abuse and alcoholism. In alcoholism, the symptoms occurs in the body itself because the body becomes dependent upon that substance. तो ये psychological and physical dependence develop हो जाती है under the category of alcoholism. People with an alcohol addiction need to drink in order to function. मतलब जिसको एडिक्शन है और जिसको डिपेंडेंस हो गई है, वो जब तक शराब नहीं पीता, हिज बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शन. तो उसको अपनी बॉडी को फंक्शनल बनाने के लिए दैट इंडिविजुअल नीड्स अमाउंट ऑफ अल्कोहल. Signs that may be struggling with alcohol dependence include: number 1 is tolerance. You find yourself needing to drink larger quantities of alcohol to get the same mind altering effects. जो मैंने पहला बताया था 2:4, कि मतलब जो माइंड ऑल्टरिंग स्टेट हमारी 2 पैक से हो जाती थी, अब वो 4 पैक से हो रही है बिकॉज ऑफ द टॉलरेंस. माई बॉडी हैज़ डेवलप्ड अ टॉलरेंस फॉर दैट 2 पैक्स. तो वो जब अब 2 पैक इंडिविजुअल पी रहा है, तो दैट 2 पैक्स आर हैविंग ए प्लेटो इफेक्ट. मतलब वो कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, मतलब एक प्लेन लाइन में चलते जा रहे हैं. तो उस टॉलरेंस को दूर करने के लिए इंडिविजुअल क्या करता है, वो अमाउंट को बढ़ाता है. 2 की जगह 3 पीता है, 3 की जगह 4 पीता है. इन दिस वे द टॉलरेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज ब्रेक्ड बाय इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. और ये जैसे जैसे इंडिविजुअल पीता जाता है, अब 2 की कमी कैसे पूरी हो रही है, 4 से पूरी हो रही है. कल को 4 से टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी तो 6 से पूरी होगी. कल को 6 से भी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी तो 8 से पूरी होगी. तो जो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है ना, इसकी वजह से इंडिविजुअल completely becomes helpless to do or performs his day-to-day functioning. Second is alcohol withdrawal. Someone with alcohol dependence who stops drinking may have withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms include nausea, shaking, sweating, irritability and anxiety. मतलब जब हम अल्कोहल को पीना छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी फिर रिएक्ट करना शुरू करती है. शराब का कंजम्पशन हमारी बॉडी में होता है, माई बॉडी फील्स वेरी मच रिलैक्स्ड, और हमें बड़ा अच्छा लगता है. नशे की हालत में हम क्या कर रहे हैं, परहैप्स आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दैट. लेकिन जब हम शराब का कंजम्पशन छोड़ देते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में बॉडी में नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं विच आर वेरी पेनफुल फॉर द इंडिविजुअल. उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है it affects the cerebellum. Cerebellum is the part of the brain which is responsible for the coordination of the body. तो जब हम बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं ना, तो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी लूज़ कर देते हैं, because the consumption of alcohol is affecting that particular area of the brain which is responsible for the motor coordination, that is cerebellum. तो ये डिफरेंट टाइप के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं विच आर वेरी पेनफुल फॉर द इंडिविजुअल, एंड टू अवॉइड दीज विड्रॉल सिम्टम अ पर्सन यूज टू कंज्यूम मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहल. क्योंकि डिपेंडेंस हो जाती है, तो 4 पैक से वो काम नहीं हो रहा है तो हम पैक को बढ़ाते हैं, फिर 8 करते हैं, फिर 8 से हमारे विड्रॉल सिम्टम ख़त्म होते हैं. तो टॉलरेंस एंड विड्रॉल में एक टाइप से डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अ पर्सन इज़ मोर लाइकली टू एग्जिबिट विड्रॉल सिम्टम एज सुन एज ही लीव्स द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. और वो विड्रॉल सिम्टम्स आपके तभी जाते हैं जब
शराब आपकी बॉडी में रिएक्ट करती है। तो रिएक्ट करने का क्या मतलब है, रिएक्शन तो तभी होगा ना जब टॉलरेंस लेवल के बाद आप कंज्यूम करोगे। अगर 4 पैक से आपके टॉलरेंस डेवलप हो गई है तो जब आप 5वां या 6ठा पैक करोगे तभी तो विड्रॉल सिम्टम जाएंगे ना। तो these withdrawal symptoms are very painful for the individual, and to avoid these withdrawal symptoms the person takes larger amount of alcohol. Alcohol withdrawal can be a medical emergency. Seek medical help right away if someone experiences seizures, severe vomiting, hallucinations, fever. ये भी जो 4 टाइप हैं, सीजर्स हो गए, सीवियर वोमिटिंग, हेलुसिनेशंस, फीवर, ये भी अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स में, बट दीज आर मोर सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स, कि इंसान फेंट हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं, कुछ होता नहीं है, आदमी को दिखाई देना शुरू होते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, आवाज़ें सुनाई पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, दे आर सो पेनफुल दैट दे रिक्वायर मेडिकल इमरजेंसी. अ पर्सन हैज़ टू गो टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर और सम फिजिशियन और टू सम हॉस्पिटल फॉर getting rid of the withdrawal symptoms which have occurred due to the lack of consumption of alcohol. So if you have alcoholism and a history of withdrawal symptoms, see a doctor before quitting. You should also see a doctor before quitting alcohol if you have other health conditions. तो अल्कोहलिज्म, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म, और अगर आप अल्कोहल छोड़ते हैं तो आपके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे फिर आप उस कंडीशंस के बियॉन्ड जा चुके हैं कि आपके हाथ में है कि आप कभी भी अल्कोहल छोड़ दो। तो ये जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं, आपने अल्कोहल छोड़ दिया और आप यू आर ट्राइंग टू टॉलरेट द पेन्स ऑफ द विड्रॉल सिम्टम, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जिसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और उसने अल्कोहल का कंजम्पशन अचानक से छोड़ दिया, तो उसके रास्ते में वो ड्राइव कर रहा, उसके सीजर्स आने शुरू हो गए, चक्कर खा के गिर जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दैट कैन बी फेटाल ऑल्सो। या इतनी वोमिटिंग हो कि द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, उस वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन हो के अ पर्सन कैन, मतलब एनीथिंग कुड हैपन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म and he faces such withdrawal symptoms, such severe withdrawal symptoms, so he should not initiate in isolation to get rid of the alcohol. He should take a medical help to quit the alcohol. Third is compulsion. First was the tolerance, second was the withdrawal, third is the compulsion. You experience intense cravings to drink alcohol and find yourself unable to stop drinking even when you want to. Long-term alcoholism can result in life-threatening conditions such as heart disease, cancer, and cirrhosis, liver cirrhosis. So compulsion is what? Compulsion is the compulsive behavior. You don't want to do that, but you have to do that because your body needs that. So this is called the compulsion. आपकी craving इतनी ज़्यादा, इतनी intense होती है कि you cannot help it. तो ये जो क्रेविंग्स होती हैं जो आपको उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए बाध्य कर देती हैं, दिस इज़, ये जो बाध्यता होती है, जो रेजिस्टेंस आप नहीं कर पाते हैं, इसे कंपल्शन बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हु ड्रिंक्स? Age and gender affects people's experience with drinking alcoholic beverages in most societies. One reason for gender differences in drinking is that female on average experience more intoxication than males from the same amount of alcohol. This is because even when body size is the same, female metabolize alcohol less quickly than males. तो जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में बायोलॉजिकली होते हैं. अगर मेल्स को 2 ड्रिंक पीने से नशा आता है तो वही नशा फीमेल्स को 1 ड्रिंक करने पे हो पाएगा. और इसका रीज़न जो है वो है मेटाबॉलिक रेट की वजह से, क्योंकि फीमेल्स मेटाबोलाइज अल्कोहल लेस क्विकली देन मेल्स. मेल्स में इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस जल्दी हो जाती है तो उन्हें देर से नशा होता है. तो जो इंटॉक्सिकेशन रेट होती है वो फीमेल्स में फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिक रेट. So how alcohol affects our health? This is very important because alcohol affects the health of a person in various ways. It can damage your brain, it can affect your kidneys, lungs. There are so many health problems because of the alcohol, and I will deal all these problems one by one.
Alcohol is used to make wine, beer, spirits, and liquors. It is a legal sedative drug that can cause addiction or dependency for people who drink too much. Alcohol can change behavior. Alcohol abuse harms your health and damage relationships and society through violence, crime, accidents, and drink driving. सो अल्कोहल के पर्सनल डैमेजेस ही नहीं होते हैं. इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर पर्सनल हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर सोशल रिलेशनशिप एंड इवन सोसाइटी एज अ होल, बिकॉज योर ड्रिंकिंग इज़ अफेक्टिंग अदर्स हेल्थ ऑल्सो. आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, दूसरा आदमी बिल्कुल हेल्दी है, उसने कोई ड्रिंक नहीं किया एंड ही इज़ फॉलोइंग ऑल ट्रैफिक रूल्स, बट स्टिल उसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो. कभी कभी आपकी गलती की वजह से दूसरा इंसान मर भी जाता है. तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर इफेक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अवर सोसाइटी एज ए होल एज वेल. अल्कोहल पी के आप चोरी करते हो, डकैती करते हो, ड्राइविंग करते हो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. तो दे आर सो मेनी सोशल प्रॉब्लम्स विच अराइज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनली और सोशली दोनों तरीके से एक पर्सन को डैमेज करती है. अल्कोहल से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं. पहला है बिंज ड्रिंकिंग. सो यू शुड नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अल्कोहल कंजम्पशन. पहला आपका बिंज ड्रिंकिंग है और दूसरा हैंगओवर है. तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ बिंज ड्रिंकिंग. बिंज ड्रिंकिंग मीन्स ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल इन अ शॉर्ट टाइम. For a man, drinking more than 8 units of alcohol on one occasion is binge. For a woman, it is more than 6 units on one occasion. आदमियों के लिए अगर 8 ड्रिंक्स उसने एक ही टाइम पे पी ली, एक ही ओकेजन पे पी ली, तो ये बिंज ड्रिंकिंग है. विमेन के लिए इट इज़ 6. If you binge drink, you could develop long-term or permanent health problems. Binge drinks can cause blackouts, memory loss, anxiety, irregular heartbeat, etc. So binge drinking is harmful for the health of the individual in the long run. तो बिंज ड्रिंक को अगर हम एक्सप्लेन करें लेमन लैंग्वेज में तो हम क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा शराब पीना इज़ कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग. Second is hangover. A hangover follows a bout of heavy drinking. When you have hangover, you are dehydrated and experience alcohol poisoning. You also have a headache, feel sick, feel tired, become irritable. मतलब जब ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? उन आफ्टर इफ़ेक्ट्स को हम हैंगओवर कहते हैं. These hangovers are nothing but the poisoning of alcohol. और इनमें जो ये हैंगओवर होते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी एंड द अमाउंट कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल. तो इसमें सिकनेस की फीलिंग, टायर्डनेस की फीलिंग, हेडेक हो जाता है, कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस या उल्टियाँ वगैरह भी शुरू हो जाती हैं. तो दीज आर नोन एज द हैंगओवर. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अल्कोहल एंड हेल्थ? फर्स्ट इज़ द ब्रेन डैमेज. ब्रेन डैमेज क्यों होता है? जैसे हमने पहली स्लाइड में भी आपको दिखाया था कि अल्कोहल का जो अमाउंट होता है इट अफेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. जैसे अमिगडला को जो अफेक्ट करता है, अमिगडला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी. आपने जितना मेमोराइज किया है वो एमिगडला में स्टोर्ड होता है. तो द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एमिगडला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिट्राइवल, रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन. तो जब अल्कोहल का कंजम्पशन अमिगडला को अफेक्ट करता है या हिपोकैम्पस को अफेक्ट करता है तो दैट अफेक्ट्स द मेमोरी ऑफ द अल्कोहलिक ऑल्सो. तो उस कंडीशन में अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस हिज आइडेंटिटी डिटेल्स, ही इज़ नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स. So brain damage because alcohol affects different parts of the brain. So alcohol can damage your brain. Brain damage affects your behavior, memory, ability to learn. Alcohol is very harmful to young people because their brains are still developing. If you are a regular heavy drinker, you risk permanent brain damage, mental health problem and alcoholism. Alcoholism is very harmful. और जैसा कि मैंने बताया हिपोकैम्पस, एमिगडला, कॉर्पस कोलैज, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो लर्निंग एंड सेरेबेलम, ये लर्निंग, मेमोराइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो इफ़ यू आर हैविंग टू मच अमाउंट ऑफ अल्कोहल तो नेचुरली इट विल अफेक्ट योर डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन
responsible for different functioning. For example, amygdala and hippocampus for learning and memorization, cerebellum responsible for coordination and balance. So alcohol adversely affect different parts of the brain. Second is cancer. Alcohol can also lead to cancer. Alcohol is the second biggest risk for cancer after smoking. तो स्मोकिंग पहला ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर होते हैं, एंड आफ्टर स्मोकिंग इट इज़ अल्कोहल. If you regularly drink above the weekly alcohol limit, you are at greater risk of developing mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, that is in the food pipe, colon cancer, breast cancer, bowel cancer and liver cancer. तो कैंसर जो होता है इट मे ऑल्सो कॉज्ड बाय हैवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. थर्ड इज द हार्ट एंड सर्कुलेशन. Alcohol can cause high blood pressure, which increase your risk of having a heart attack or a stroke. And excess drinking alcohol can make a person more prone to lung infections also, such as pneumonia. One could also suffer a collapsed lung when a person vomits due to drinking alcohol. They could choke if vomit gets into their lungs. मतलब जब स्मोकिंग में जब आप बिंज स्मोकिंग करते हैं और जब विड्रॉल सिम्टम के रूप में आपको बार बार वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग की वजह से लंग में इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि जब आप वोमिट करते हैं तो वोमिटिंग में अगर चोकिंग हो गई एंड सम पार्ट गोज इनटू द लंग, दैट particular particle of the food and that choked particle can infect the lungs of the person. So जो smokings होती vomiting होती हैं, which are very common in the withdrawal symptoms of the alcohol, can cause to lung infections as well. Fourth is the pancreas inflammation. Heavy or long-term drinking can cause inflammation of the pancreas also. It is a very painful condition where a drinker experience vomiting, fever, weight loss. तो pancreatic inflammation जो होता है because of the consumption of alcohol, it is very painful as it occurs vomiting, fever and weight loss in the personality of the individual. Next is the alcohol abuse and fertility. Long-term drinking can cause infertility in men and women as well. Men can also become impotent. Drinking alcohol when pregnant can damage your unborn baby's development. तो अल्कोहल का टू मच कंजम्पशन इनफर्टिलिटी रेट को भी अफेक्ट करता है, एंड इट कॉजेज इनफर्टिलिटी रेट अमंग मेल एज वेल एज अमंग फीमेल्स. और अल्कोहल का कंजम्पशन प्री नेटल डेवलपमेंट में भी, बच्चे के प्री नेटल डेवलपमेंट में भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है. Next is alcohol abuse and bones. Alcohol interferes with your body's ability to absorb calcium. If you lack calcium, your bones become weak and thin. आप जितना भी ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करोगे तो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. तो जब आपकी बोन्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो नेचुरली द बोन्स बिकम वीकर एंड द पर्सन इज़ मोर लाइकली टू डेवलप osteoporosis and some problems related to the development of bones such as bones deformity, osteoporosis and हल्का सा धक्का लगने के साथ ही हड्डियाँ टूट जाना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द बोन, दैट माइट अकर ड्यू टू excessive alcohol consumption. Now the question arises, what are the determinants of alcohol abuse? Why people use and abuse alcohol? So the first factor is socio-cultural factors. The main reason for starting to drink involves social and cultural factors, particularly the expectancies that form from watching other individuals enjoying themselves while drinking. For example, the more teens see alcohol seen in movies and on TV, the more they are likely to drink in the future. So socio-cultural factors are what? They are nothing but they are observational learning. हम अपनी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी देखते हैं, हम अपने कल्चर में जो कुछ भी देखते हैं तो देख के सीख रहे हैं. तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. उस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम क्या लर्न कर रहे हैं? द पर्सन हु इज़ टेकिंग अल्कोहल इज़ वेरी फ्री एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ लाइक एनीथिंग. तो ये जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, एंड दैट बिहेवियर इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी मेम्बर्स. तो वाई शुडंट आई अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर बिहेवियर? तो दिस थिंकिंग
तो ये जो थिंकिंग हमारी कहाँ से आ रही है, दिस इज़ अराइजिंग फ्रॉम आवर सोशल कल्चरल फैक्टर्स। मतलब कल्चर उस चीज़ को बूस्टअप कर रहा है और हम अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं कि जो ड्रिंक कर रहा है वो लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो हम उस चीज़ को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू लर्न करते हैं एंड वी ट्राई टू टेक मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहल। और धीरे धीरे जो जो पहले हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो धीरे धीरे उसका एडिक्शन हो जाता है, एंड दैट अल्कोहल यूज़ turns into alcohol abuse, and that alcohol abuse turned into alcoholism. Second is the reinforcement. With continued drinking, the strength of behavior through positive and negative reinforcement and substance related cue develop. First is the positive reinforcement. Individual may receive positive reinforcement for drinking if they like the taste of a drink or the feeling they get from it, or if they think they succeeded in business deals or social relationship as a consequence of drinking. So what the purpose of this paragraph is to convey you that positive consequences of a certain action may lead as a positive reinforcement for the individual to take more and more quantities of अल्कोहल। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, जैसे इंडिविजुअल को ये लगा कि अगर उनकी कोई डील जो है, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील अल्कोहल की वजह से क्रैक हो गई, तो ये उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। या उनको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, या जब उन्होंने ड्रिंक किया तो उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस या बहुत वो सोशल रिस्पेक्ट वाला इशू हुआ। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती हैं, जिसकी वजह से a person is more likely to have alcohol on another occasion as well. या कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ तो कुछ नेगेटिव भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से उसने सेकेंड ओकेजन पे भी अल्कोहल लेना शुरू किया। तो these all positive reinforcement lead to more and more consumption of alcohol. Second is the negative reinforcement. It is also a part of reinforcement. In case of negative reinforcement, that is the reduction of an unpleasant situation, we have seen that people often use alcohol to reduce the stress and unpleasant emotions. They may drink to suppress their negative thoughts or feelings of anxiety in social situation. तो जितने हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस होते हैं, हमारा डिप्रेशन, लोनलीनेस, बोर्डम या आइसोलेशन, आई एम फीलिंग वेरी आइसोलेटेड, सो व्हाट शुड आई डू, तो आई स्टार्ट हैविंग अल्कोहल टू रिड्यूस ऑल दीज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है उसकी वजह से भी कभी कभी अल्कोहल अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है। थर्ड फैक्टर इज डेवलपमेंटल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट तो हेरिडिटी है। इट प्लेज अ मच स्ट्रॉन्गर रोल व्हेन द अब्यूज़ बिगिंस बिफोर एज 25 देन आफ्टर। अगर 25 साल से पहले अल्कोहल का अब्यूज़ स्टार्ट हो गया तो इट बिकम्स मोर harmful as compared to people who start taking alcohol after 25. People with a family history of alcoholism appear to develop a tolerance to alcohol, drink increasing amount to feel the same effect. ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत आएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो यहाँ पे डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं। डेवलपमेंटल फैक्टर्स में क्या होगा, इफ़ द फैमिली इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इज सच दैट अ चाइल्ड इज लुकिंग दैट एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन the consumption of alcohol, so alcohol is not a odd one out for that individual. Alcohol is not a taboo for that individual. मतलब हम चाहे जितना अल्कोहल ले लें, alcohol abuse is not a taboo for that particular individual whose family is going through this. तो उसके लिए वो आइडियल पैटर्न होता है, क्योंकि उसकी फैमिली में हो रहा है, तो ही इज़ मोर लाइकली टू बिकम एन अल्कोहलिक एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जिनमें डेवलपमेंटल फैक्टर्स ये नहीं है। मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि उनकी फैमिली में अगर कोई पीता नहीं है तो अगर वो बाहर से जाके ड्रिंक करके आएंगे तो फैमिली में हाइड करने की कोशिश करेंगे, फैमिली में पेरेंट उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, इसका उन्हें डर होगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में है, फैमिली में एवरीबडी इज़ टेकिंग एंड इट इज़ द नॉर्मेटिव पैटर्न ऑफ हिज फैमिली, सो दैट पर्सन इज हैविंग more likelihood of developing alcoholism. C. People with a specific gene pattern experience stronger cravings for alcohol after having a drink other than individual. कुछ लोगों में कुछ ऐसे जीन्स के पैटर्न हो सकते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर, जिनकी वजह से उनको अल्कोहल के लिए ज़्यादा क्रेविंग हो एज़ कम्पेयर टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर नॉट हैविंग दैट स्पेसिफिक जीन पैटर्न. Fourth is people with high genetic risk for alcohol dependence find alcohol rewarding each time they drink, but low risk people do not.
तो जिनके जेनेटिक फैक्टर्स में अल्कोहल डिपेंडेंस होती है वो दे आर मोर लाइकली टू डेवलप अल्कोहलिज्म। फोर्थ जो फैक्टर होता है, डिटर्मिनेंट होता है कि वाई पीपल ड्रिंक, इज़ अवॉइडिंग विड्रॉल। मतलब हमारी बॉडी में ड्रग अल्कोहल डिपेंडेंस स्टार्ट हो गई है और जैसे ही हम अल्कोहल को छोड़ते हैं माई बॉडी स्टार्ट्स हैविंग विड्रॉल सिम्टम। तो इन विड्रॉल सिम्टम को हटाने के लिए भी इंडिविजुअल है जो अल्कोहल का अमाउंट लेना शुरू करता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ डिटरमाइनिंग फैक्टर कि मैं क्विट करना चाहती हूँ बट आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दैट पेन एंड दैट सफरिंग ऑफ द विड्रॉल सिम्टम। सो इन विड्रॉल सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए भी इंडिविजुअल यूज टू ड्रिंक अल्कोहल। Fifth is expectancies. People develop expectancies or ideas about the outcomes of their behavior from their own experiences and from watching other people. Some expectancies are positive. For example, we may decide by watching others not that drinking alcohol is fun. Other expectancies are negative, that drinking can lead to hangover. तो जैसी एक्सपेक्टेंसीज होंगी, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अल्कोहल के कंजम्पशन से हमारी सोशल रेपुटेशन बढ़ेगी और आई वुड बी हैविंग सम एडवांटेज बाय हैविंग अल्कोहल कंजम्पशन, तो अगर ये एक्सपेक्टेंसीज हमारी पॉजिटिव हैं रिलेटेड टू अल्कोहल, तो अ पर्सन इज़ मोर लाइकली टू हैव द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल as compared to those people who are having negative expectancies regarding alcohol. Now the question arises, what types of treatment of alcohol abuse should be given to the individual? First, तो जो as a psychologist we deal or as a health psychologist we do is the behavioral treatment. हेल्थ साइकोलॉजिस्ट में हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो हेल्थ साइकोलॉजी के सेक्शन में इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट वी आर मोर ओवर फोकस्ड ऑन द नेचुरल थेरेपीज। तो बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स आर एम्ड एट चेंजिंग ड्रिंकिंग बिहेवियर थ्रू काउंसलिंग. They are led by health professionals and supported by studies showing they can be beneficial. अब अगर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलता है तो वी मस्ट बी हैविंग सब मेडिकल एड. मेडिकेशंस, 3 medications are currently approved in the United States to help people stop or reduce their drinking and prevent relapse. They are prescribed by a primary care physician or other health professional and may be used alone or in combination with counseling. The US Food and Drug Administration (FDA) has approved 3 medications for treating alcohol dependence and others are being tested to determine if they are effective. मतलब 3 टाइप के जो treatment हैं, they are being accepted and others are under research. First is naltrexone. It can help people reduce heavy drinking. Second is acamprostate, makes it easier to maintain abstinence. And third is disulfiram. It blocks the breakdown metabolism of alcohol by the body, causing unpleasant symptoms such as nausea and flushing of the skin. Those unpleasant effects can help some people avoid drinking while taking disulfiram. तो ये 3 टाइप के जो ट्रीटमेंट हैं, मेडिकेशन हैं, these are approved by FDA and the research is still going on and hopefully some other treatments and medication, line of medication will also be approved and could be beneficial for the treatment of alcoholism. Next is self-care groups. This comes more under the concern of health psychologists. So Alcoholics Anonymous AA and other 12-step programs provide peer support for people quitting or cutting back on their drinking. Combined with treatment led by health professionals, self-care groups can offer a valuable added layer of support. मतलब जो self-care groups होते हैं ये इंडिविजुअल के लिए मेडिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द इंडिविजुअल. मेडिकेशन हमें बायोलॉजिकली अफेक्ट करता है. मेडिकेशन अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये जो सेल्फ केयर ग्रुप्स होते हैं या जो बिहेवियरल इंटरवेंशनल प्रोग्राम होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं और जो ये मेडिकेशन होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं. मतलब हमने दवा ली, अब दवा अपने आप असर कर रही है, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है. दैट
medication is biologically affecting our some parts of the brain, और उसके क्या consequences होते हैं, वो help करते हैं अल्कोहल रिडक्शन में या नहीं करते हैं, that is involuntary, that is not under the control of the individual. But as far as self care groups and behavioral interventions are concerned, a person is actively involved in that. A person perceives the support system and the person is internally motivated to get rid of that symptom, so that is more beneficial for the individual. क्योंकि if we think positive about ourselves that I can quit it, that naturally boost up even the medication process as well. क्योंकि हमारी जो functioning होती है, that affects all the things we are perceiving and we are having in our life. तो इसके बाद टाइप्स ऑफ बिहेवियरल ट्रीटमेंट हैं. दिस इज़ कंसर्न मोर अबाउट द बिहेवियरल इंटरवेंशन. इसमें आपकी पहली सीबीटी हो सकती है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं. द गोल इज़ टू चेंज द थॉट प्रोसेस दैट लीड टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड टू डेवलप द स्किल नेसेसरी टू कोप विद एवरीडे सिचुएशन दैट माइट ट्रिगर प्रॉब्लम ड्रिंकिंग. इसमें सीबीटी का मेरा एक वर्कशॉप हुआ था, जिसका मैंने पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाया है. उसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी प्रोवाइड किए हैं, मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी व्हेंस आई कंप्लीट द टोबैको एडिक्शन एज वेल. क्योंकि जो ये आपके जितने भी सब्सटेंस अब्यूज़ हैं या टोबैको स्मोकिंग है, इनके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पार्ट है, दिस इज़ मोर और लेस सेम. मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस यूज थोड़ा बहुत कुछ होता है, बट एज़ फार एज बिहेवियरल इंटरवेंशन इज़ कंसर्न इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. तो इनका जो बिहेवियरल इंटरवेंशन प्रोग्राम है, वो डिटेल में मैं आपको एक साथ बताऊंगी व्हेन आई कवर द टोबैको स्मोकिंग टोबैको. Second is motivational enhancement therapy. The therapy focuses on identifying the pros and cons of seeking treatment, forming a plan for making changes in one's drinking, building confidence and developing the skills needed to stick to the plan. Third is marital and family counseling. Strong family support through family therapy increases the chance of maintaining abstinence, stopping drinking, compared with patient undergoing individual counseling. So मतलब ये मान के चलते हैं ना कि जो अल्कोहल अब्यूज़ है या ड्रग अब्यूज़ है, इट मे बी ड्यू टू सम सोशल प्रॉब्लम, सम पर्सनल प्रॉब्लम. पर्सनल प्रॉब्लम में क्या आती है? मैरिटल एंड फैमिली काउंसलिंग आती है ना, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम. तो मैरिटल एंड फैमिली काउंसलिंग ग्रुप्स कैन हेल्प अ लॉट इन रिड्यूसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम. एंड इसमें इंडिविजुअल को ये कन्विंस किया जाता है कि यू डोंट हैव टू सी सम अदर support system, you have to improve or improvise your family relationship through your positive thinking, through your communication, because sometimes communication gaps create a lot of problems. So marital and family counseling group provokes an individual to seek support in around themselves, not seeking support in the form of taking alcohol. Brief interventions are short, one-to-one or small group counseling sessions that are time limited. The counselor provides information about the individual's drinking pattern and potential risk. After receiving personalized feedback, the counselor will work with the client to set goals and provide ideas for helping to make a change. Brief interventions में क्या होता है? ये individual की personalized counseling होती है. इसमें उसकी केस स्टडी पहले फाइंड आउट करके फिर उसको बताया जाता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, कि आपके लिए क्या क्या नेगेटिविटी हो सकती है, आप इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं. दूर करने के लिए बिहेवियर इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स होते हैं. कैसे हम जैसे सीबीटी में हम बहुत पैटर्न्स, बहुत तरीके बताते हैं. ये जब मैं अपने आपको वो प्रेजेंटेशन भेजूंगी तो उसके साथ में लिंक भेज दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा. बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड 2 or 3 स्टेप्स टू हाउ टू गेट रिड ऑफ tobacco intake, drug abuse and alcohol abuse by implementing those small steps of CB2. तो दीज ब्रीफ इंटरवेंशंस क्या होते हैं? ये शॉर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें पर्सनलाइज काउंसलिंग की जाती है टू हेल्प द पीपल हाउ दे कैन प्लान टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. So this was all about drug and alcohol abuse. These are the references of the slides and the matter I have taken from different sites. And thank you for now. Have a good day.